My friends, today the Lord is here with us to do miracles. मेरे मित्रों, आज प्रभु हमारे साथ यहाँ चमत्कार करने को हैं। Don't be worried. चिंता ना करें। Just listen to his words from Proverbs 18:10. नीति वचन 18:10 से उनके वचन को सुने। The name of the Lord is a fortified tower. यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। The righteous run to it and are safe. धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। Then God's name, which is with us, is a strong tower, my friends. मेरे मित्रों, जो परमेश्वर का नाम हमारे साथ है वह तो दृढ़ गढ़ है, A fortified tower, एक मजबूत गढ़। which means it is so well guarded. इसका अर्थ है कि इसकी कड़ी सुरक्षा की जाती है। Nobody can enter into it. कोई भी इसमें यूं ही प्रवेश नहीं कर The सकता। righteous are safe under his name. धर्मी लोग उसके नाम के नीचे सुरक्षित In हैं। baseball or in cricket, when they reach the line of the batter, they are safe. बेसबॉल या क्रिकेट में जब बल्लेबाज अपनी लाइन तक पहुंच जाता तो वह सुरक्षित हो जाता है। Like that, let us run to the Lord. उसी प्रकार आइए हम प्रभु की शरण में Every जाएं। day. प्रतिदिन। There was a meeting held by a very powerful servant of God. परमेश्वर के एक महान सेवक द्वारा एक सभा की आयोजना की But गई। just when the meeting started, there was huge rains. लेकिन जैसे ही सभा शुरू हुई जोरदार बारिश होने लगी It did not stop. और बारिश रुकी नहीं। But the servant of God was so amazed to see all the people still in that meeting. लेकिन प्रभु का जन यह देखकर चकित हुआ कि सभा में अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। Under the cover of the tent, they were standing in a corner and listening. तंबू की आड़ में वे एक कोने में खड़े होकर वचन सुन रहे थे। Some people took a banner and spread it over them and they were listening. कुछ लोगों ने बैनर लिया और अपने ऊपर उसे फैला लिया और वे वचन सुनने That लगे। was amazing how they received the word of God even though there was heavy rain. यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बारिश के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया। That's the way we have to absorb the word of God every day. हमें प्रतिदिन इसी प्रकार परमेश्वर के वचन को आत्मसात करना चाहिए। That is our strong fortified tower. यही हमारा मजबूत और दृढ़ गढ़ है। The righteous run to the word of God. धर्मी परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। That word of God operates mightily in our life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सामर्थी रूप से काम करता God है। does miracles. परमेश्वर चमत्कार करते हैं। God protects our life. परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा He करते हैं। rescues us from harm. वह हमें हानि से बचाते हैं। So run to the word of God each day. इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। Each day brings its own trouble. हर एक दिन अपनी परेशानियां लेकर आता But है। through the word of God, God's new mercies for that day comes upon us. लेकिन परमेश्वर के वचन द्वारा उस दिन के लिए परमेश्वर की नई दया हम पर आती And है it protects our life. और हमारे जीवन को सुरक्षित And you करती है। yourself will feel so full of God's Spirit. और आप स्वयं परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण महसूस करेंगे। God is giving that grace to us. यही अनुग्रह परमेश्वर हमें दे रहे Shall हैं। we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Lord, thank you for helping us run towards your word from today. हे प्रभु, आज से हमें अपने वचन की ओर चलने में सहायता करने के लिए धन्यवाद। Forgive us if we have not listened to you, Lord. प्रभु क्षमा कीजिए यदि हमने आपकी ना सुनी हो। Because of that, our life has become so unsafe and full of harm, इसी वजह से हमारा जीवन इतना असुरक्षित और हानि से भरा हुआ है, full of danger. खतरों से भरा हुआ है। Come, Lord, and teach us your word every day. प्रभु जी आइए और हर दिन अपना वचन हमें सिखाइए। Help our heart to thirst for that word. हमारे मनों में वचन के प्रति प्यास लाइए। Understand that word from the Bible बाइबल के उन वचनों को हम समझ पाएं and pray over it. और उसके लिए प्रार्थना And करें let there be healing. और चंगाई आए, Let there be joy. आनंद हमें मिले, Let there be openings in our life. हमारे जीवन में नए अवसर आए, Let there be success after success coming. हमें निरंतर सफलता मिलती रहे। Let there be strength even in times of trouble. संकट के समय में भी हमें बल प्राप्त हो। Let your word guide our feet, Lord. प्रभु आपका वचन हमारी अगुवाई करे, Strengthen our feet, Lord. हमारे पैरों को बल दीजिए। Thank you for giving us this grace. हमें यह अनुग्रह देने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। My friends, मेरे मित्रों, continue to be in this word उसके वचन में नित्य बने रहें and share this blessing with other friends by sharing it and liking this video. इस वीडियो को लाइक करने और शेयर करने के द्वारा इस आशीष को औरों तक बांटिए।
and subscribe to the channel for every day's blessing. और प्रतिदिन की आशीष पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Precious Dansrang Narsari, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय दंसरांग नरसारी, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष है। According to Psalm 34:10, those who seek the Lord lack no good thing. भजन संहिता 34:10 के अनुसार यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कोई घटी नहीं होती। Father, bless Dansrang. Let the pending salary be paid in the name of Jesus. Blessing come in the job and financial prosperity come. Gilashri, have good health. हे पिता, दंसरंग को आशीष दें। यीशु के नाम से उनका बकाया वेतन उनको दिया जाए। नौकरी में उन्हें आशीष मिले, सफलता मिले और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति हो। गिलाश्री का स्वास्थ्य अच्छा रहे। And Zumwisa, Zaitlong, have wisdom and knowledge. और जुमविजा जेतलोंग को ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो। Mrs. Tarani, be healed from every pain, body pain, in the name of Jesus. Let her walk. श्रीमती तरानी, यीशु के नाम से आप सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ाओं से चंगाई पाएं, उन्हें चलने फिरने की शक्ति मिले। And Genuine Narzari and Sansbrang and Kingston have wisdom and divine blessing and divine joy in Jesus' name. जेनुइन नजारी, सॉन्स ब्रांग और किंगस्टन को यीशु के नाम से ज्ञान, ईश्वरीय आशीर्वाद और आनंद मिले। Amen. God bless you.